Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the lesson 3.2, The Night I Met Einstein. Einstein is a very renowned name in the field of science. He hardly needs an introduction. Okay, still in the warming up exercise you all can see one question has been given, giving briefing about Albert Einstein. Okay, so let's get started. In the profession column you are going to write down he was a scientist. Field of science, उनकी फील्ड थी फिजिक्स. वर्ल्ड फेमस थियरी प्रपोज्ड, उनकी वर्ल्ड फेमस थियरी जो थी दैट वाज थियरी ऑफ रिलेटिविटी. अवार्ड्स, he secured many awards, multiple awards he received. तो उनमें सबसे prominent है Nobel Prize in Physics in the year 1921. Then Copley Medal, COPLEY, Copley Medal by the Royal Society in the year 1925. So likewise he achieved many awards. If you Google search you will come to know. Okay. Disability in childhood, डिसेबिलिटी उनके अंदर क्या फिजिकल डिसेबिलिटी ना, तो यू मस्ट हैव हर्ड रिगार्डिंग अ डिजीज. इट इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज dyslexia. Dyslexia is it is a disease related to the studies. Actually when a person is not able to read and write properly, that is called dyslexia. So despite this disability he managed to become a well-renowned scientist. So this is not a smaller achievement, you can say. Well, books written, he wrote many books. So among all those books, the prominent one is The World as I See It. The World as I See It, जिसके अंदर उन्होंने मे बी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया है. इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1949. देन देर वॉज अ बुक आइडियाज़ एंड ओपिनियन, तो इट गॉट पब्लिश इन द ईयर 1954. नाउ व्हाई आर वी एक्चुअली studying or reading about Albert Einstein and his briefing? Look, the name of the lesson is The Night I Met Einstein. Actually this lesson is a story in which author encounters, he encounters here means he come across the famous scientist Einstein. और ये कोई जो है साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, है ना. ये कोई जो है इन लोगों की गैदरिंग जो है साइंस रिलेटेड या स्टडीज़ एकेडमीज रिलेटेड नहीं थी. एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था जिसके अंदर ऑथर जो है आइंस्टाइन से मिलता है और फिर क्या होता है, दैट इज़ व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू सी. नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. Look at the pictures of musical instruments and write their names. What the player of instrument is called and a famous player of the instrument. तो in the first column you are going to write कि उसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, और उसको बजाने वाले को क्या बोलते हैं, और उसका एक रिनाउंड प्लेयर. तो यू ऑल कैन सी द फर्स्ट पिक्चर गिवन इज तबला, और द वन हु प्लेज इट कॉल तबला प्लेयर, और इन हिंदी द वर्ड इज तबालची. तबालची. एंड नो नीड टू से के हु प्लेज इट. द फेमस tabla player is Zakir Hussain, है ना. You must all have seen him in the ad of that Taj tea. Taj tea के जो ad में देखा होगा आप लोगों ने. उसका फेमस जो है पंच लाइन भी एक ऐड का कि वाह उस्ताद वाह, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए, है ना. ही इज़ अ रिनाउंड तबला प्लेयर. सेकेंड पिक इज ऑफ अ शहनाई, and the one who plays is called Shehnai Wadak, and the name of the famous player is already given, Ustad Bismillah Khan. The third pig is the piano. The one who plays it is called pianist,
and the famous player is Anil Srinivasan from India. I'm giving you the Indian name, Anil Srinivasan. Worldwide you have multiple names and all of you can easily Google search it. Then the next pick is of drum है ना, which is played जो लोग अपना ग्रुप बनाते हैं है ना, म्यूजिकल बैंड जो अपना क्रिएट करते हैं लोग, जो यूजुअली ड्रम जो है प्ले करते हैं. तो द वन हु प्लेज इट इन द सेकेंड कॉलम इट विल कॉल ड्रमर और ड्रमिस्ट, दोनों आ जाता है, ड्रमर और ड्रमिस्ट. एंड द इंडियन नेम फॉर इट इज़ रिंगो स्टार है ना. जो लोगों को म्यूज़िक का शौक है दे मस्ट बी नोइंग ऑल द नेम्स. सो द फेमस प्लेयर इज़ रिंगो स्टार. So next, see the next one. The next pick is of violin. It's not a guitar, it's violin, and the one who plays it is called violinist. VIOLINIST, violinist. And the famous name from India is Karthik Iyer. कार्तिक आर्यन नहीं बल्कि कार्तिक अय्यर. सेकेंड लास्ट पिक इज़ ऑफ सितार. अक्सर क्लासिकल जो है म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में कभी देखा होगा आप लोगों ने, सितार होता है और जो बजाता है सितारिस्ट. सितारिस्ट. एंड द फेमस नेम इज़ रविशंकर. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द ट्रम्पेट. ये भी देखा होगा आप लोगों ने. द वन हु प्लेड इज़ कॉल्ड ट्रम्पेटियर. ट्रम्पेट आएगा उसी के आगे ER, ट्रम्पेटियर. एंड द फेमस नेम फॉर इट इज़ लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग. लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग. देयर इज़ वन इंडियन नेम एज वेल, किशोर सोधा. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. सेपरेट द वर्ड्स इन द कॉलम्स दे बिलोंग टू. सो ना यहाँ पे 3 आपको कॉलम दिए कि कौन से वर्ड्स जो है म्यूज़िक से डील करते हैं, कौन से वर्ड्स जो है डांस से डील करते हैं, कौन से वर्ड्स जो है ना दोनों आर्ट से. म्यूज़िक एंड डांस इज डिफरेंट ना. तो आई डायरेक्टली गिव यू द वर्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद म्यूज़िक. तो म्यूज़िक वाले कॉलम में आ जाएगा कोरस, मेलोडी, स्वर, रागा, सिम्फोनी, serenade, tune, allegro, duet and choir. Choir means जब ग्रुप सिंगर्स एक साथ गाते हैं ना, ग्रुप सिंगर मेन एक सिंगर होता है, उसके पीछे जो है एक साथ ना बहुत सारे ग्रुप सिंगर्स गाते हैं, लाइन को रिपीट वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड choir. And serenade is also type of music. Okay. Now in the second column, common to both. Common to both में आप लिख सकते हो साल्सा, ऑडियंस, कॉन्सर्ट, परफॉर्मेंस. अब जो बच्चा है ऑब्वियसली द रिमेनिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद डांस. तो डांस में आ जाता है बैलेट, कथक, मुद्रा, टैंगो, उड़ीसी, हिप हॉप, कोरियोग्राफी. ओके, द रिमेनिंग वर्ड्स विल कम इन द कॉलम ऑफ डांस. So now you can guess that this lesson depicts actually a link between scientist and music. Scientist और music इन दोनों का जो है relation depict कर रहा है. And as I told you, it is in the form of a story. Name of the author, you all can see Jerome Weidman, born in the year 1930 to 1998. He expired. He was an American playwright and novelist. Playwright, one who writes plays. In 1960, he won Pulitzer Prize. Underline the word Pulitzer Prize. This Pulitzer Prize, it is given in the country of US. यूएस में ये दिया जाता है. और क्यों दिया जाता है
for achievements in newspaper, magazine या online journalism, literature, anyone in the music. हाँ, तो ये मतलब टिपिकली आर्ट एंड लिटरेचर से कनेक्टेड लोगों को दिया जाता है. म्यूजिकल ड्रामा टाइटल फियोरेलो. तो एक इनका म्यूजिकल ड्रामा था जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला. अंडरस्टूड ना व्हाट इज़ पुलित्जर प्राइज़? ये एक अवार्ड है जो यूएस में दिया जाता है. किस लिए? फॉर अचीवमेंट्स आइदर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर या फिर इवन म्यूज़िक के लिए भी. तो इनको भी एक अपना म्यूज़िकल ड्रामा लिखा था उन्होंने जिसके लिए मिला. ही कोलैबोरेटेड विद जॉर्ज अबाउट जेरी बोकजो. sorry, it will be pronounced Jerry Bock, है ना, J silent, and Sheldon Harnick for its music and lyrics. तो इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था ये बुक लिखने के लिए, क्योंकि ये बुक जो है किस म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड थी, राइट. His book I Can Get It For You, the whole set has been used for a movie of the same name. अभी आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी ना, यूजुअली जो मूवीज़ है इवन इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया वो जो है बुक्स के ऊपर नॉवल बेस्ड होते हैं. सो नाउ वी आर एक्चुअली बिगनिंग विथ अवर लेसन. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. After a wonderful dinner, our hostess took us to a large drawing room. Chairs were being arranged. I'm arranging the chairs for a concert, my hostess said. We are going to listen to a very good pianist. समझ में आई बात कि ऑथर क्या बोल रहा है कि जब मैं बहुत छोटा था मतलब मैं यंग था, तो मुझे इनविटेशन मिला था टू डाइन इज़ द वर्क फॉर्म ऑफ डिनर, है ना. रात के खाने का मुझे इनविटेशन था, वो भी किसके घर पे? एक philanthropist. Write, underline the word and write down the meaning. A person who promotes the welfare of others. A person who promotes the welfare of other. जो दूसरों के लिए है ना, दूसरों की भलाई के लिए जो काम करता है, स्पेशली जो पुअर्स की भलाई के लिए काम करते हैं. आप दूसरे लफ्ज़ों में बोल सकते हो कि सोशल वर्कर. तो उसको आप बोल सकते एक तरह से फिलैंथ्रोपिस्ट. तो उन्होंने इनविटेशन दिया था. तो आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आवर हॉस्टेस टूक अस. हॉस्टेस अ वुमन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट, है ना. जैसे आपने एयर हॉस्टेस तो सुना ही होगा, तो वहाँ वैसे ही वहाँ पर एक लेडी अटेंडेंट खड़ी थी, एक लेडी हॉस्टेस थी. तो खाना ख़त्म होने के बाद उसने हम सबको एक बड़े ड्राइंग रूम में बुलाया. वहाँ पे चेयर्स अरेंज किए गए और उसने कहा भी कि मैं जो है ये चेयर्स क्यों अरेंज कर रही हूँ, एक यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है. तो ये कॉन्सर्ट आप लोगों के लिए न्यू वर्ड नहीं होगा, है ना. टीवी में अक्सर देखा होगा आप लोगों ने लाइव कॉन्सर्ट, अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक बाय प्लेयर्स और सिंगर. तो यहाँ पे एक कॉन्सर्ट होने वाला है. मेरी हॉस्टेस ने बोला वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना वार्मिंग अप में, है ना, द वन हु प्ले पियानो, उसको बोला जाता है पियानिस्ट. दो एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट. हर कोई खुश था मुझे छोड़कर. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. एक तो ये म्यूजिक मेरी समझ से बाहर था. I thought I was tone deaf. Look, what is the meaning of tone deaf? Usually this word come in the vocabulary. Tone deaf, unable to hear the difference between high and low notes of music. जिसको म्यूजिक के सुर की, ताल की समझ ना हो, that is called tone deaf. तो मैं समझता था कि भाई मेरे को मेरी समझ से बाहर है क्या है, सारे गामा पधा निसा एंड ऑल दिस स्टफ आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. So I used to consider myself a tone deaf. I sat down so that I would not be impolite. अब वहाँ से उठ के चले जाता तो कितना, है ना, रूड लगता कि भाई देखो हमारा गेस्ट है, ये बंदा उठकर चले गया. And waited for the concert to begin. तो मैं चुपचाप वहीं बैठ गया. I did not pay attention to the music after it began. अब वहाँ पे बस म्यूज़िक चल रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग.
अब देखो कभी कभार ऐसा होता है ना कि समझो आप टिकट खरीद के मूवी देखने चले गए और मूवी इतनी बोरिंग निकली, स्पेशली अगर रात के वक्त आप गए, आपकी आंख लग गई, समझो बस अचानक से कोई सीन आता है, पब्लिक जो है ताली बजाती है, सीटी बजाती है, तो आपकी अचानक आँख खुल जाए। बस बिल्कुल वही सीन था ये बंदे के साथ कि ही वॉज एंटायरली बोर्ड एंड बिकॉज ऑफ पीपल्स क्लैपिंग, बिकॉज ऑफ पीपल अप्लॉज, लोगों के अप्लॉज की वजह से, लोगों की क्लैपिंग की वजह से उसको रियलाइज़ हुआ कि लगता है ये शो ख़त्म हो गया बाबा, चलो अच्छा हुआ, टेंशन ख़त्म हुआ। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल सॉफ्ट ना बट फर्म वॉइस। तो आवाज़ जेंटल भी थी, मतलब कोई ऐसा लग रहा था पोलाइटली भी बात कर रहा है, लेकिन एकदम कड़क आवाज़ थी, है ना। फर्म वॉइस, यू आर फॉन्ड ऑफ बैच, फॉन्ड ऑफ है ना, पसंद करना, कि तुमको बैच पसंद है। हुज बैच? जोहन सेबेस्टियन बैच, अ जर्मन ऑर्गेनिस्ट, म्यूजिकल ऑर्गेनिस्ट। आप लोग पता है जो मुंह के अंदर रखे ना और एक ऑर्गेन बजाते हैं, माउथ ऑर्गेन बोलते हैं ना जिसको, तो वो थे वो, एंड कंपोजर ऑफ 17th सेंचुरी। तो इनका कोई म्यूजिक एल्बम था 17th सेंचुरी, तो एक्चुअली वो एक सिंगर थे। आई न्यू एज मच अबाउट बैच एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। अब भाई ये क्या बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है ये कि भाई मेरे को बैच के बारे में उतना ही मालूम जितना कि फिजिक्स के बारे में, यानी मेरे को दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। अब इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, एक तो मैं कहाँ लोगों के बीच में फंस गया था, है ना, पियानिस्ट का शो चल रहा था, अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ से कैसे हटूँ। तो ऐसे ही ऑर्डिनरी सा जवाब दिया, आम सा। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर, और मैं मुड़कर देखा कि भाई कौन है जो मेरे से पूछ रहा है। एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस। तो मुझे बहुत ही फेमस फेस नज़र आया। इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड पाइप। तो जो शख्स मेरे से पूछ रहा था, द वन हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन, ही हैड लिटिल ग्रे हेयर्स, वाइट हेयर्स, एंड हैड अ पाइप, जैसे सिगार होता है ना, यूजुअली पहले लोग जो है सिगार वगैरह पीते थे, जो रॉयल लोग रहते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, सिगार। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रुथ। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदमी ने खड़े होकर क्या पूछा था उससे कि भाई तुम बैच को जानते क्या हो। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनको सच्चाई बता दूँ, क्योंकि वो भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरा आंसर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इनको सही जवाब दे ही दिया। आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैच, कि भाई मेरे को बैच के बारे में कुछ नहीं मालूम। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, मैंने कभी नहीं सुना। ही लुक सरप्राइज्ड, वो एकदम सरप्राइज हो गए। यू हैव नेवर हर्ड अबाउट बैच? क्या पूछा उन्होंने कि कभी तुमने बैच के बारे में नहीं सुना? ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ। ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या कह दिया कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहाया नहीं, है ना, कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहाया नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है। इतना सरप्राइज थे वो। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैच, आई सेड। तो मैंने अभी जस्टिफाई किया, भाई मेरे को पहले म्यूज़िक तो समझ में आना चाहिए, फिर बैच क्या और बच्चन क्या सबको समझ लेंगे। आई सेड बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम टोन डेफ। और मैंने उनको कहा कि मेरे को आई डो नॉट अंडरस्टैंड द म्यूजिक फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। टू अंडरस्टैंड अ म्यूजिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव, है ना, यू नीड टू गेट अट्रैक्टेड with the music itself. If you don't like the music, how come you would like a musician? The old man got up. तो वो जो मुझसे पूछ रहा था वो, that person stood up. You will come up with me, he asked. उन्होंने मुझसे पूछा आप चलोगे मेरे साथ। किसने किसको पूछा? ये देखो, ये आपको ना Who Said to Whom में आता है। हाँ, You will come up with me, कौन पूछा? दैट स्ट्रेंज। अभी आपको ना फाइनली पता चलेगा लेसन में कि ये कौन था पूछने वाला, है ना। एंड आई होप यू मस्ट हैव गेस्ड, आप लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा, क्योंकि नेम ऑफ द लेसन इज द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। तो प्रोबेबली दिस पर्सन वाज आइंस्टाइन हिमसेल्फ।
तो उन्होंने पूछा कि यू विल कम अप विथ मी, तो मेरे साथ आओगे? आई जस्ट रिमेन सीटेड, मैं वहाँ से नहीं हिला। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। वापस उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्लीज़, मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऑथर को उठना ही पड़ा। आई वेंट अप विथ हिम, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। ग्रामोफोन पता है आप लोगों को, पहले ज़माने में देखिए इस तरह का ऐसा वो सर्कुलर देखो दिया है, बहुत बड़ा डिस्क होता था, फिर उसके ऊपर वो जो है आपको दिख रहा होगा एक आयरन का जो है स्टिक जैसा रख देते थे और फिर म्यूज़िक प्ले होता था, क्या पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा म्यूज़िक पसंद है। वेल आई आंसर्ड आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूज़िक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून। मुझे ऐसी म्यूज़िक पसंद है जिसमें वर्ड्स हो मतलब कि अल्फाज वाले है ना, क्योंकि अक्सर मूवीज़ वगैरह देखे होगा आपने, थीम म्यूज़िक रहता है जिसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं रहते। तो थीम म्यूज़िक नहीं, मुझे वर्ड्स वाली म्यूज़िक पसंद है जिसके अंदर मैं ट्यून को समझ सकूं। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड, ऑब्वियसली प्लीज्ड। नॉडिंग यू नो, सर हिलाना ना, मूव हेड अप एंड डाउन इंडिकेट एग्रीमेंट। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स। तो उन्होंने सर हिला के स्माइल करके जो मुझसे पूछा कि क्या तुम कोई एग्जाम्पल बता सकते हो। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। Who is Bing Crosby, American singer and actor. At once I could hear Bing Crosby's voice filling the room. At once मतलब immediately, फौरन जो है रूम में किसका साउंड प्ले किया जाने लगा, किसका सॉन्ग प्ले किया जाने लगा, बिंग क्रॉसबाय का। Now can you please tell me what you just heard? अब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बता सकते हो कि तुमने अभी क्या सुना। The simplest answer seemed to be to sing the line, so I sang it back to him. तो सिंपल मैंने वही गाना वापस उनको गा के सुना दिया कि भाई मैंने यही सुना जो भी गाना था। He smiled, you are not tone deaf, he said. तो उन्होंने कहा तुम टोन डेफ नहीं हो। I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so it didn't really prove anything. तो मैंने इनको क्या जवाब दिया, ऑथर बोल रहा है कि ये गाना तो मैंने 100 बार सुना हूँ, मेरा फेवरेट है, तो ऑब्वियसली मेरे को तो याद ही रहेगा ना। तो ये थोड़ी बात प्रूव करता है कि मैं टोन डेफ नहीं हूँ। तो आइंस्टाइन सेड लुक नाउ हियर द नेम हैज़ बीन गिवन, पहली बात नॉनसेंस, इट प्रूव्स एवरीथिंग। इससे सब पता चलता है, सब साबित होता है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? तुमको याद है तुमने सबसे पहले स्कूल में क्या सीखा? Suppose at your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in say long division and fraction. Could you have done it? है ना? तो जब केजी में जाता है या फर्स्ट में जाता है तो सबसे पहले उसको नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, या फिर ये नहीं कि बड़े बड़े सम सॉल्व करने ना 9th 10th स्टैंडर्ड के सॉल्व करने दिए जाते हैं क्या? डिवीजन फ्रैक्शंस भी नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं कर सकता। तो यही बात को जो है वो इलैबोरेट कर रहे थे। Not of course, exactly, it's like learning maths. You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division, है ना। मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहे थे कि तुमको पहले सिंपल प्रोसेस, सिंपल चीज़ें पहले लर्न करना पड़ेंगी, तभी तो तुम डिफ़िकल्ट चीज़ें लर्न करते हो। तो सेम गोज़ विथ म्यूज़िक ऑल्सो। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस। अब मैं थोड़ा अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ। हाँ, अभी जो ग्रामोफोन है जिसमें मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, अभी देखो मैं किसका म्यूज़िक प्ले करता हूँ। It was John McCormack singing the trumpet here. Sing that back, he ordered. अब उन्होंने मेरे से पूछा कि आज जो मैंने गाना बजाया है ना वो गा के सुना दो। And we went on from level to higher level until we was playing just music without words. सच में तो इन्होंने धीरे धीरे करके जो है उससे टफर सॉन्ग लेवल बढ़ाते गए और अल्टीमेटली जो है थीम म्यूज़िक प्ले किया तो वो भी जो है ऑथर को समझ में आ रहा था। आई वॉज अमेज्ड मीन्स सरप्राइज दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू। मैं इतना सरप्राइज था कि भाई ये देखो ये आदमी को कितनी पढ़ी है ना। अब मैंने जो है पहचान लिया था बाय द टाइम कि ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज द फेमस साइंटिस्ट, ही वॉज द फेमस फेस। और वो मेरे को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे ताकि मैं म्यूज़िक सीख पाऊँ। इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था मैं इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। सडनली ही गॉट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन।
अचानक वो खड़े हुए और उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया. नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन बैच. अब हम लोग जो है बैच को सुन सकते हैं. वी वेंट डाउन एंड सेट इन द हॉल, जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन, ही सेड, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू से इट. कि बस अपने कानों में म्यूजिक को पढ़ने दो, बस सुनते रहो. आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे. वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने वो म्यूज़िक जो है कई बार सुना हूँ, है ना. बट लेकिन जब भी मैं वो आज भी म्यूज़िक प्ले करता हूँ, बट आई एम नेवर अलोन. जब भी आज मैं म्यूज़िक को प्ले करता हूँ, मैं कभी भी अकेला नहीं सपाता हूँ अपने आप को. आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विद अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ. किसकी बात करें? आइंस्टाइन की. लेकिन जब भी whenever I play this song, I recollect those memory. Understood? I get nostalgic. You understand what is the meaning of nostalgic? Nostalgic means to memorize previous thing. मैं पुरानी बातें दोबारा याद करने लगता हूँ. I become nostalgic. He has eyes that are unusually warm. तो उनकी आंखों में एक अलग ही warmth थी, गर्मजोशी थी. When the concert ended, I too was able to clap sincerely. अब वापस ये कॉन्सर्ट की बात करें कि वो दिन था, है ना, जब मुझे पूरा उन्होंने A to Z बताया म्यूज़िक का, और फिर मैं जब नीचे गया तब मैं पहली बार सिंसियरली क्लैप कर रहा था, सच्चे दिल से. अवर हॉस्टेस केम टूवर्ड अस, वी बोथ स्टूड अप. और वो हॉस्टेस हमारे नज़दीक आए, हम दोनों खड़े हो गए. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक. गिविंग मी अ कोल्ड लुक, ऑथर को कोल्ड लुक. ऑथर को कोल्ड लुक क्यों दे रही थी, है ना, कि वो कंसिडर कर रही थी कि यही शख्स है जिसकी वजह से मिस्टर आइंस्टाइन ने ये कॉन्सर्ट मिस कर दिया, इस आदमी की वजह से. तो शी वॉज कंसिडरिंग ऑथर रिस्पॉन्सिबल, ऑथर को रिस्पॉन्सिबल समझ रही थी ना, इसलिए कोल्ड लुक दे रही थी. दैट यू मिस सो मच. I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. तो आइंस्टाइन ने भी अपोलोजाइज़ किया और कहा कि हम लोग दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कर रहे थे, है ना. हम लोग ये देख रहे थे कि एक इंसान कितना केपेबल है, कितना सीख सकता है, और हम लोग इसमें कामयाब हुए. शी लुक पजल्ड. पजल्ड मीन्स व्हाट? कंफ्यूज. रियली? आप लोग क्या रियली कोई ऐसा काम कर रहे थे? एंड व्हाट्स दैट? आइंस्टाइन स्माइल एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. अंडरलाइन द वर्ड फ्रंटियर्स. फ्रंटियर्स मीन्स व्हाट? बाउंड्रीज. ओके, तो क्या मतलब उन्होंने जवाब दिया कि मेरे कंधे पर हाथ रखा, है ना, ऑथर के, और हम लोग क्या कर रहे थे? ब्यूटी की बाउंड्रीज को खोल रहे थे. विच ब्यूटी? ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक, है ना, उसकी बाउंड्रीज़ को खोल रहे थे. मतलब ये आदमी ने अपने आप को जो है, ऑथर ने अपने आप को जो कैद करके रखा था, एक मेंटलिटी क्रिएट करके रखा था कि भाई मेरे को म्यूज़िक समझ में आता नहीं है. तो ये जो मेंटलिटी को इसने जो लिमिटेड करके रखा था ना, है ना, जो क्लोज करके रखा था, हम वही बाउंड्रीज़ को खोल रहे थे. अंडरस्टूड? सो आई होप दिस लेसन वाज इन अ वेरी लूसिड लैंग्वेज. So I hope all of you understood this lecture. Okay, now we are going to see English workshop. Okay, so let's see the workshop. The narrator was not happy about the concert because, so इसके जो answers है, if you're having passages before you, so you will directly get from there. Okay, but anyways I just want you people to write down. So ये फर्स्ट में आंसर आएगा, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. ओके, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन बी. व्हेन द नरेटर टर्न टू लुक एट हिज नेबर, ही saw a very famous face with a shock of hair and pipe. I repeat again. He saw a very famous face with a shock of white hair and a pipe. So all these answers you will directly get from the passages. Third is,
Einstein was surprised to hear that the narrator had never heard any of Bach's music and did not know anything about him. I repeat again, the narrator had never heard any of Bach's music and did not know anything about him. Okay. Now the question number D. Question number D is, the narrator's memory has an image of Einstein as a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. Almost वही same answer आएगा. A small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. And the last one, the greatest act towards human being is. The last one is, the greatest act towards human being is opening up the frontiers of beauty. Okay. Now we proceed to the second question. Who said to whom? Okay. We are going to listen to a very good pianist. किसने कहा था? The hostess. To whom? The narrator. An effect on the listener? Not very happy. लिसनर मतलब जिसको ये डायलॉग बोला गया है ना, जिसको ये डायलॉग बोला गया उसका क्या रिएक्शन था. तो ये डायलॉग जो है नरेटर को बोला गया और ये सुन के वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी. आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैच. हु टोल्ड दिस? द नरेटर. टू हुम इट वॉज टोल्ड? एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या रिएक्शन था? द लिसनर लुक्ड सरप्राइज्ड. द लिसनर लुक्ड सरप्राइज्ड. थर्ड देखिए, यू आर नॉट अ टोन डेफ. हु टोल्ड दिस? एल्बर्ट आइंस्टाइन. किसको बोला था? द नरेटर को. एंड हाउ वाज हिज रिएक्शन? द लिसनर ट्राइड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ. द लिसनर ट्राइड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ. And the last one is, just allow yourself to listen, that is all there is to it. Who told this? Einstein ने कहा ना. किसको कहा? The narrator. और narrator का क्या reaction था? The listener was able to clap sincerely. The listener was able to clap sincerely. Okay. And look at the third question. List all the words from the story related to music. तो क्या क्या आएगा? राइट डाउन. बैच, वो एक म्यूजिशियन था ना. बैच कॉमा टोन डेफ कॉमा ग्रामोफोन कॉमा सॉन्ग्स कॉमा ट्यून. आई रिपीट अगेन. बैच कॉमा टोन डेफ कॉमा ग्रामोफोन कॉमा सॉन्ग्स कॉमा ट्यून. Look at question number 4. Rewrite the following sentence inserting the appropriate phrases in their proper form. और देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे phrases दिए हैं. You know what कि phrases जो होते हैं ना, they are based on the prepositions. Out of, come up, turn on, in, get into, है ना, सारे आपको prepositions दिख रहे हैं. Now you have to select and you have to write in the proper tense form. आपको proper tense form में लिखना है. Okay. तो फर्स्ट का आई डायरेक्टली गिव यू द आंसर. राइट डाउन. ही गॉट आउट ऑफ द बेड. ही गॉट आउट ऑफ द बेड एंड केम डाउन द लिविंग रूम टू सी इफ द डोर वॉज क्लोज्ड. टू सी इफ द डोर वॉज क्लोज्ड. नेक्स्ट इज टू एंजॉय द म्यूजिक एंड रिलैक्स. ही turned on the music and turned off the lights. He turned on the music and turned off the lights. C1 देखिए. स्मिता gave in to her desire and gave off her favorite toys to the poor. ठीक है. तो फर्स्ट फिलअप में क्या आया? gave in. और सेकेंड में क्या आया? gave off. OFF off. Then next is, you should get into mathematics so that you can work out problem. You should get into mathematics so that you can work out problem. Okay.
Now look at the fifth question. Okay, give 2 points of difference between instrumental music and vocal music. Instrumental music and vocal music. Now in that you can write the first question, first point. आपको बस 2 ही पॉइंट देना है. तो लिखिए कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बड़ा ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड और वोकल म्यूजिक में द वॉइस आर यूज्ड, है ना, वोकल कॉर्ड्स वॉइस आर यूज्ड. देन यू कैन राइट दैट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में आप लिख सकते हो द फाइनल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट. The final sound is produced by the instrument, whereas vocal music में the final sound emerges through the mouth. Okay. Now look the B question. You have to give difference between light music, classical music and folk music. इन तीनों के बीच में आपको जो डिफरेंस समझता है that you have to give. तो आप पहला लाइट म्यूजिक में लिख लीजिए pleasant to hear. Pleasant to hear. Then write down the second point. Does not demand any great emotion or effort from the listener. Does not demand any great emotion or effort from the listener. Classical music क्या होता है? Number 1 write down based on discipline, है ना, बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, प्रॉपर आपको सुर वगैरह प्रॉपर फॉलो करना. सेकेंडली राइट डाउन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रिदम एंड पैटर्न्स. स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रिदम एंड पैटर्न्स. तीसरा फोक म्यूजिक में आप लिख लीजिए कम्स फ्रॉम द हार्ट. कम्स फ्रॉम द हार्ट. और सेकेंड लिख लीजिए उसमें नो रूल्स. ओके. Now look at the sixth question. Prepare a word list of occupations in alphabetical order from the letters A up to T. You may skip K and Q. अब जैसे मतलब आपको प्रोफेशंस बताने हैं यहाँ पर ना, ऑक्यूपेशन. A फॉर एक्टर, B फॉर बैंकर, C फॉर कारपेंटर, वैसे D फॉर डॉक्टर, E फॉर इंजीनियर, F फॉर फार्मर, G फॉर जियोलॉजिस्ट एंड H फॉर हैबरडेशर. HABER, हैबर, DASHER, हैबरडेशर. अब हैबरडेशर किसको बोलते हैं? वो जो हम जब स्टिचिंग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइक बटन्स है, जीप है, थ्रेड है, ये सब चीज़ों में डील करने वाले. लाइक आई गेस के दिस काइंड ऑफ शॉप इज इवन देयर इन काका नगर. तो ऐसी चीज़ों में डील करने वाले को बोलते हैं हैबरडेशर. I फॉर इंस्पेक्टर, J फॉर जॉकी या जोकर भी हो सकता है, L फॉर लेबरर, M फॉर म्यूजिशियन, N फॉर न्यूरोसर्जन, O फॉर ऑप्टिशियन, P फॉर पेंटर, R फॉर रेडियोलॉजिस्ट. रेडियोलॉजिस्ट वो जो एक्सरे निकालते हैं उनको बोला जाता है रेडियोलॉजिस्ट. S फॉर सिंगर एंड T फॉर टीचर और टेलर. रीराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन. देखो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली डील करता है ग्रामर से. हाँ, तो ये आप लोगों को जो पैसेजेस में जो डी पार्ट A4 एक्टिविटीज होती है बेस्ड ऑन टेक्सचुअल ग्रामर, उसके ऊपर आ सकता है. अब ये देखो, यू आर नॉट टोन डेफ. ठीक है, यू आर नॉट टोन डेफ. तो अभी हम लेसन का जो है ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जब इन्वर्टेड कॉमा में डायलॉग्स दिए होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, जब दो लोगों में बात चल रही है और इन्वर्टेड कॉमा में डायलॉग दिए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब इसी बात को कोई तीसरा रिपोर्ट करे, ठीक है, तीसरा जन रिपोर्ट करे ना, जैसे अभी मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन सेशन में आप सारे स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, यू ऑल आर सो क्लेवर. ठीक है, यू ऑल आर सो क्लेवर.
ये मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ स्टूडेंट से सेकंड पर्सन, लेकिन समझिए ये बात जो है आप लोगों के साथ और भी कोई सुन रहा होगा, आपके पेरेंट्स है या फ्रेंड्स है, कोई भी सुन रहा होगा। तो जब वो बंदा कोई चौथे को रिपोर्ट करेगा तो क्या बोलेगा कि टीचर ने, ठीक है, स्टूडेंट्स को बोले कि वो क्लेवर है ना। तो एक्चुअली इनडायरेक्ट स्पीच देखा जाए, मैंने आप लोग को बोला कि तुम लोग क्लेवर हो, लेकिन तीसरा बंदा क्या रिपोर्ट करेगा, टीचर ने स्टूडेंट्स लोगों को बोला कि वो लोग क्लेवर है, वो लोग। तो जब दो लोगों की बात कोई तीसरा लगाता है ना, इसको ही बोला जाता है रिपोर्ट करना, रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इट वुड बी मच क्लियर कि अगर इफ इट इज एक्सप्लेन इन 1-to-1 सेशन, डायरेक्ट सेशन, बट स्टिल आई गिव यू द आंसर। तो जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड टू मी। तो इसका आंसर आप लिखोगे, सबसे पहले आप इनडायरेक्ट में ना कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। और जब दो लोगों में बात हो रही है ना, और सेंटेंस जो है नॉर्मल है, फुल स्टॉप वाला अजर्टिव सेंटेंस है, तो आप सेड टू को टोल्ड करोगे। क्या करोगे? सेड टू को टोल्ड करोगे। तो ही सेड टू मी की बजाय आप लिखोगे ही टोल्ड मी, मे को बोला ना, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट टोन डेफ। He told me that I was not tone deaf. Okay. Next देखिए आप, could you have done it? said Einstein. Could you have done it? said Einstein. किसने बोला? आइंस्टाइन। और ये क्वेश्चन है ना, तो आप लिखोगे Einstein asked if he could have done it. Einstein asked if he could have done it. Next देखिए, sing that back. He ordered me. आंसर लिख लीजिए, he ordered me to sing that back. He ordered me to sing that back. Look at the next question. He said, what kind of music do you like? तो आप लिखोगे यहाँ पे, he asked what kind of music I liked. He asked what kind of music I liked. Next देखिए, I am so sorry. Dr. Einstein, she said. I am so sorry. Dr. Einstein, she said. तो इसका आप आंसर लिखोगे, she told Dr. Einstein that she was very sorry. She told Dr. Einstein that she was very sorry. Alright. Okay. Now you have to. ये भी जो है next question is also dealing with the grammar. So this kind of questions can be asked. It's very important. So positive, comparative, and superlative. Again, we need to have personal lectures for this, but still I give you the direct answer. I am not taller than my friend. I am not taller than my friend. They are, देखो अगर आप रेफरेंस बुक रेफर करोगे तो दे आर मोस्ट हेल्पफुल एज, बट यहाँ पे एज नहीं दिया, तो आप यहाँ पे आना चाहिए दे आर एज हेल्पफुल एज देयर नेबर्स. दे आर एज हेल्पफुल एज देयर नेबर्स. No other desert in Africa is nearly so big as the Sahara Desert. Next देखिए, very few animals in the wild are exactly as huge as an elephant. Some snacks are at least as tasty as a pizza. It is pronounced pizza. Now look at this. Change the degree of comparison. अब आपको चेंज करना है सुपरलेटिव कंपैरेटिव में whatever. तो पहले का आंसर लिख लीजिए, तन्वी इज द मोस्ट ब्रिलियंट इन द क्लास. तन्वी इज द मोस्ट ब्रिलियंट इन क्लास. सेकेंड, अ डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर स्टोन. अ डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर स्टोन. नेक्स्ट, हर हैंड राइटिंग है ना, तो यू आर गेट राइट. हर हैंड राइटिंग इज बेटर देन ऑफ हर सिस्टर. आंसर इज हर सिस्टर्स हैंड राइटिंग इज नॉट एज गुड एज
hers. Her sister's handwriting is not as good as her. Next answer I'm giving, Jupiter is larger than all other planets. Jupiter is larger than all other planets. Next, none of the leaders are as great as he is. None of the leaders are as great as he is. Next, this is the best painting in the palace. This is the best painting in the palace. Okay, तो देखो एक्चुअली ये जो है ना डिग्री, चेंज द डिग्री, फॉर दैट यू नीड टू हैव 1-to-1 सेशन. तो आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर. तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट मे बी यू विल नॉट गेट इन, है ना, डीपली इन एंड इन प्रॉपर मैनर. Okay, but inshallah when we will have a proper session, then I will give you the in-depth explanation. Prepare a word chain. Word chain पता है ना आप लोग को, just like अंताक्षरी, that you have to pick up the last letter and you have to form a word. But समटाइम्स यू हैव टू बेयर इन द माइंड, कभी कभी है ना बोलते हैं कि वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव ही बनाओ या वर्ड चेन ऑफ नाउन ही बनाओ. अभी आप आगे यहाँ पे देखो ना, रिच भी दिया है, येलो भी, और पियानिस्ट तो कॉमन नाउन है, रिच और येलो तो एडजेक्टिव है. मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन मेक एनी वे. तो आई एम मेकिंग ट्री, फिर डेंजर के बाद रिवर, फिर रिच के बाद हेस्टी, फिर येलो आ गया है, फिर येलो के बाद वॉर्म एंड वॉर्म के बाद म्यूजिक. तो मैं पढ़ती हूँ पूरा वर्ड चेन. ट्री एंड डेंजर, रिवर, रिच, हैस्टी, येलो, वॉर्म, म्यूजिक. आप लास्ट लेटर लेके कोई भी यहाँ पे वर्ड बनाओ. हाँ, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज पिक आउट वर्ड्स दैट रेफर टू द फॉलोइंग. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है आपको जो A3 होता है ना, इसमें आने के चांसेस है. अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस इन पब्लिक, क्या बोला जाता है उसको? कॉन्सर्ट. अ लेडी हु इनवाइट्स एंड लुक आफ्टर गेस्ट, क्या बोला जाता है उसको? हॉस्टेस. अ डिवाइस यूज टू प्ले रिकॉर्डेड म्यूजिक, ग्रामोफोन. एंड वन हु इज पुअर एट डेसिफरिंग म्यूजिकल नोट्स, डेसिफरिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग. हाँ, क्या आएगा? टोन डेफ. एंड द लास्ट वन इज बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ अ फील्ड, फ्रंटियर. बाउंड्रीज मतलब फ्रंटियर्स, याद रखिए. ठीक है. अब एज आई टोल्ड यू, दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे सेशन. म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ द माइंड. नरेट एन एक्सपीरियंस दैट लीड्स अबव कंक्लूजन. नरेट एन एक्सपीरियंस मतलब आपको ना स्टोरी टाइप लिखना है, तो यू जस्ट ट्राई अ हैंड ऑन इट. आप लोग अगर आपके पास डिफरेंट रेफरेंस बुक अवेलेबल है, उसमें से पढ़िए, बट ट्राई टू राइट इट ओन. इट विल गिव यू अ गुड राइटिंग स्किल प्रैक्टिस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर thoroughly. Okay, this 13 question also, na, just to have a glance on it. Imagine you are the monitor of the class. You are asked to conduct an interview of a famous scientist who is in your city. So this is actually framing 8 to 10 interview questions. तो ये आप लोगों को जो है ना, आपके जो 20 मार्क्स होते थे इंटर्न, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस ईयर येट, क्योंकि अभी तो ना तो स्कूल्स प्रॉपरली रीओपन हुए हैं बहुत सारे, है ना. समवेयर इट इज रीओपनिंग, बट आई गेस इट विल बी लाइक लास्ट ईयर ओनली, कि आपको 80 मार्क्स का पेपर एंड 20 मार्क्स का जो है इंटरनल मार्क्स होगा. तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो है इंटरनल मार्क्स के लिए चला गया था, पेपर में नहीं आता. इट डजंट कम इन योर बोर्ड पेपर. तो यू कैन ट्राई इट फॉर योर इंटरनल मार्क्स. ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस, डू इट. ठीक है, आई डोंट आस्क यू टू स्किप इट, डू इट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरनल मार्क्स. Okay, so thanks for the patient listening. Here I end up ultimately. Bye bye.